There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. This week, we saw the worst sort of jingoism ever witnessed on TV news. बहुत खुश हैं आप सभी, बहुत खुश हैं। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। Union Home Minister Amit Shah dismantled Article 370 and announced that the state of Jammu and Kashmir will be turned into two union territories. The Union Territory of Jammu and Kashmir that will have an assembly, somewhat like the New Delhi arrangement, and a Ladakh Union Territory that will have no legislative assembly. This was such a big announcement that even Arnab finally stepped out of his studio and decided to do some reporting outside Parliament, if you can call it reporting. अगर 370 गया तो पहली बात तो ये है कि ये सबसे बड़ा कदम है भारत को एकजुट करने के लिए. It is the single biggest step for the integration of India. It is the single biggest step. मतलब भारत को एकजुट करने के लिए कहा जाए कि जब से इंडिपेंडेंस से आज तक सबसे बड़ा कदम होगा. I wonder why he's looking into his phone. I mean, not like the information he's giving needs him to refer to some notes. Anyone can do it extempore. Viewers, Article 360 scrapped. It's a big move, a huge move. It means India's won. Won. Bharat Mata ki jai. Modi hai to mumkin hai. Vande Mataram. The best part of the whole thing though was Amit Shah's speech in Rajya Sabha. Specifically this part. रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए. देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा. How well Amit Shah ji knows his TV channels. That is exactly what we saw. There was a lot of ra ra Bharat Mata ki jai, Modi hai to mumkin hai, and देखो कश्मीरी कितने खुश हैं. मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला लिया तो पूरा देश जश्न में डूब गया. $370 तो गया, पैसे से गया. अब जो पाकिस्तान के पास हमारी जमीन है वो भी वापस लानी है. और हमें पता है, हमारा दिल जानता है कि अगर मोदी जी हैं तो ये मुमकिन है. As India erupted into celebrations across every corner, the tricolour embraced every Kashmiri citizen. आज का दिन ऐतिहासिक है. जम्मू से दिल्ली तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहीं लड्डू बट रहे हैं, कहीं पटाखे फूट रहे हैं. आज मोदी ने वाकई 56 इंच के सीने का एहसास देश और दुनिया को करा दिया. As we record the show, Kashmir has been in a strict curfew for more than 4 days. Internet, landlines, mobile phones are all shut down. Even cable TV isn't working there. Journalists have found it difficult to send reports from there. Ordinary Kashmiris living outside the valley have been unable to reach their relatives and friends. But these guys knew within half an hour that Kashmiris are super happy. हमने कई लोगों से बात किया, लोग काफी खुश दिखे और लोगों को लगता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था. कोई ऐसी कर्फ्यू वाली स्थिति नहीं है. ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इस वक्त साइकिलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साइकिलिंग करते हुए जा भी रहे हैं. तो कोई डर का, किसी तरीके के आतंक का, किसी तरीके के पैनिक का यहाँ कहीं कोई तस्वीर नहीं है. कश्मीर बिल्कुल उसी तरीके से, श्रीनगर उसी तरीके से सामान्य है जैसे कि अब से पहले था. तो ये तस्वीर अब आप देखिए, श्रीनगर से देखिए और ये समझिए कि जो लोग श्रीनगर को लेकर, कश्मीर को लेकर के एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते थे कि 370 हट जाएगी तो देखिए कश्मीर की सड़कों पर क्या होगा. कश्मीर की सड़कों पर कुछ नहीं है. लोग इसी तरीके से, सामान्य तरीके से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. Anisha, I think they're talking about this guy. In the 90s, you had a government channel like Doordarshan to do some feel-good videos. Now you have private news channels like Times Now and Zee News. A new era has begun in Kashmir. From now onwards, we will have an open, inclusive Kashmir with a thriving economy, and the residents of the valley will be as equal as you and me. And the Kashmiri people, they are only looking forward now to this new dawn that's going to rise. Naya Savera, as they call it. The people of Kashmir are fine. They're happy. They're actually relieved, it seems to me. Everyone is so happy in Kashmir.
so celebratory that everyone is just locked in their house to express their happiness. That's our tradition after all. When we celebrate festivals like Diwali and Holi, we're just so celebratory that we lock ourselves in the house. And the government cuts our access to the outside world. So our happiness just stays with us. India, the greatest civilization on earth, the land of Ganges and Himalayas, the land of festivals and festivities. Let us see how Indians celebrate and express their joy. Namaskaram. Welcome to this special episode where we will focus on India's great tradition of celebrating their joys and happiness sitting locked down at home. मेघनाथ, आज दिवाली है, कितना खुशी का माहौल है। हमें बताइए थोड़ा, सड़कों में, गलियों में कैसे लोग खुशी मना रहे हैं? यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी है मनीषा, सब बहुत खुश है। इतनी खुशी है कि सुनसान रास्ते पे मुझे दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। सब लोग अंदर घर में बैठे हैं। खुशी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। वाओ मेघनाथ, जस्ट वाओ। मनीषा, बहुत ज़्यादा खुशी है। नहीं, सही में बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं एक घर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा ताला लगा हुआ है, पर अंदर 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 मेरे चेहरे पे देखिए, अंदर बहुत दिवाली मन रही है, बहुत ज़्यादा दिवाली। मुझे आवाज़ें आ रही है अंदर से, बहुत खुशियों की आवाज़ है मनीषा, बहुत ज़्यादा। अच्छा मेघनाथ, कुछ लोगों से बात करवा दीजिए। नहीं मनीषा, दैट विल बी अनएथिकल। मैं लोगों की खुशियों में कैसे इंटरफेयर कर सकता हूँ? देखिए, when people die, when floods happen, it's not like I shove mics in their faces. मैं थोड़ी माइक लेके घुस जाता हूँ वहाँ पे, that is unethical. अब ये खुशियों में मैं कैसे इंटरफेयर कर सकता हूँ? सोचिए ज़रा, मैं बोल रहा हूँ बहुत खुशी है अंदर, मान लीजिए बहुत खुशी है, सच्ची में बहुत खुशी है। आवाज़ें आ रही है अभी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, एकदम डिस्को की आवाज़ चालू हो गई अभी। मतलब बस नाच रहे हैं लोग, पागल हो रहे हैं अंदर, एकदम मस्त सेलिब्रेशन का माहौल है मनीषा। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए। मनीषा, डिस्को की आवाज़ आ रही है, डिस्को डिस्को शुरू हो रहा है। See, Kashmir is so happy. Now just sit on a shikara and take back POK. प्रधानमंत्री मोदी का मिशन कश्मीर आज पूरा हो गया है और सिर्फ अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर आखिरी फैसला होना बाकी है। What on earth is that DJ background score? हो गया 70 साल का इंतजार। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड। So happy मनीषा, I'm so happy. हुआ जश्न का दौर। Hashtag Kashmir integrated. Yes, so happy. Hashtag Kashmir with Modi. कश्मीर हमारा है bitches. It wasn't just the studios of News 18. Many news studios seemed like a rave party with anchors high on a very potent drug: nationalism. दूर हटो और ना पाको, मोदी बाप तुम्हारा है। दूर हटो और ना पाको, मोदी बाप तुम्हारा है। कश्मीर हमको जान से भी प्यारा है। कश्मीर हमको जान से भी प्यारा है। आज ललकार कर ये जो एक मिनट, ये जो आपने देखा है अपने स्क्रीन पर अभी, ये इतिहास रचा है हमारे देश। जो सिपाही आज सरहद पर तैनात है, उसे ये नहीं मालूम कि वो कल का सूरज देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। आज इतना निर्णय होने के बाद भी जो लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं, कल्पना कीजिए अगर उस सिपाही के दिमाग में ये आ गया कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए शहादत दूं और उसकी बंदूक घूम गई तो क्या होगा। ये है खुशी, ये है खुशी, ये है देश की आवाज। ये कोई दिवाली, ये कोई सर रिलीजियस त्योहार नहीं, ये देश का त्योहार है। ये देश का त्योहार है, बिल्कुल ये देश का त्योहार है, ये देश का त्योहार है। I don't know what's worse, Republic team in the studio or Republic team out in the streets. आप कितने खुश हैं बताइए, आप कितने खुश हैं? हमको आजादी से पहले 15 अगस्त के भाषण से पहले, आजादी से पहले हमें खुशी है, सारे देश को खुशी है, सभी लोगों को खुशी है, हर जाति हर धर्म को खुशी है। गौरव हमारे सहयोगी भी मौजूद है लगातार। प्रदीप भंडारी हमारे साथ मौजूद है, निधि हमारे साथ मौजूद है। लोगों का खुशी, उत्साह, जोश वाकई देखने को मिल रहा है और कह रहे हैं सब कि सही मायनों में पर्व अगस्त क्रांति हो गई है। एक बार फिर से अपने सहयोगी प्रदीप पर रुख करना चाहूंगी। प्रदीप, वो जश्न हम देख रहे हैं। जी, ओवर टू यू। कहना चाह रहा हूँ मेजर गौरव आर्या यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ जश्न नहीं, यहाँ पे ढोल भी है। मेरे साथ यहाँ पे जरा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ढोल से स्वागत हो रहा है, एक बार हो जाए। They keep saying everyone is happy,
but there's not even a single Kashmiri they've interviewed. And when they actually found some Kashmiris, every damn channel found them too. They had the same set of people across channels and the same imagery of normalcy. हम आपको कश्मीर की असली तस्वीर दिखाते हैं, हम आपको कश्मीर की नई सुबह दिखाते हैं। यह तस्वीर कश्मीर के शोपियां की है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोवाल यहां मौजूद हैं। सरकार के फैसले से आम कश्मीरी काफी खुश है। कौन है ये अजीत डोभाल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल कश्मीरी अवाम के साथ, वहां के कुछ बाशिंदों के साथ खाना खा रहे हैं। खुली सड़क पर कश्मीरियों के साथ बिरयानी का लुत्फ उठा रहे NSA अजीत डोभाल की ये तस्वीर जिस जगह की है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। In fact, he's eating biryani with them. शोपिया में इंडियन जेम्स बॉन्ड डोभाल को अपने बीच पाकर कश्मीरी लोग भी खुश दिखे, लेकिन आम लोगों के साथ सड़क पर वो दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कोशिश पूरी है कि आम लोगों का दिल जीता जाए। अजीत डोभाल की कश्मीर के लोगों से मिलने की तस्वीरें नए भारत की तस्वीर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ब्रेक्स ब्रेड इन शोपिया, कश्मीर वेलकम्स चेंज आफ्टर 370। इससे यह पता चलता है कि कश्मीर में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। Listen to the real voices of Kashmir. थोड़ी देर के लिए आप कश्मीरियों की आवाज भी सुन लीजिए, मैं कश्मीरी की आवाज भी सुनाता हूँ। Listen in to them because these are the aspirations of Kashmiris that we have put on the back burner for 7 long decades. हमारे गांव में जो भी है करप्शन वगैरह या जो अपने स्टेट में ये कम हो जाएगी। कुछ भी मेरा गांव के अंदर बिल्कुल शांति है, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं और शांति से रह रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब बगल में एक फौज की एक यूनिट है, तो वो कर्फ्यू भी है हालांकि, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बीमार हो जाता है या कोई बूढ़ा बीमार हो जाता है तो वो हमारे वो अस्पताल तक ले जाने आने जाने में मदद करते हैं सर। What does this mean? It means news came to the journalists. Journalists didn't go out looking for news. It came from one source, a source that wants to tell the world that all is well in Kashmir, and news channels amplified it by showing the same damn thing. This is very different from other channels which actually made an effort to report from the ground. आप हमसे पूछ रहे हैं, पहले आप हमारा केबल टीवी बंद करवाते हो, मीडिया बंद करवाते हो, आप हमारे सेल फोन्स बंद करवाते हो, फिर आप हमसे पूछते हो हमारे पास अभी क्या है। हमारे पास अभी ऑक्सीजन है, वो आप बंद करवा दीजिए अगर कर सकते हैं। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का वो ख़राब होता जा रहा है इस हालात से। मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि इन हालातों को खुला रखना चाहिए, स्कूल खुले रहने चाहिए ताकि बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो। अभी ईद के टाइम है, खुशियां रहती है, घर वालों के पास बैठे रहते हैं, इतना अच्छा माहौल रहता है जम्मू कश्मीर में, सारे वहाँ पे खुश है, इस बड़ी ईद के स्वागत में है सब लोग। लेकिन इस टाइम पे ऐसा जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं 15 साल से पुणे में हूँ, बाहर हूँ 15 साल से। 15 साल के बाद मैंने आज इतना बड़ा, इतनी वर्स्ट जो लोगों को बंद रखा गया है, वहाँ पे एक प्रिजन सिचुएशन कर दी गई है जम्मू कश्मीर में, ये मैंने आज पहली बार देखा है। आर्टिकल 370 जिससे हमारा एक्सेशन हुआ था इंडिया के साथ, वो खत्म हुआ। इस जैसे मैरिज खत्म हो गया। नाउ नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। साहब कितना मुश्किल है यहाँ आना? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। हर जगह नाके लगे हुए हैं, छोड़ते नहीं है, उनको दिखाना पड़ता है कहाँ जाना। हॉस्पिटल आने में भी बहुत दिक्कत है, जगह जगह 10-10, 15-15 फीट के बाद नाके लगे हुए हैं, वो छोड़ते ही नहीं है। या ये तो बोल रहे थे भाई हॉस्पिटल आप जा सकते हो, कहीं फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। इतनी प्रॉब्लम है सर, ये तो दुनिया की कश्मीरी से एक जहन्नम बन चुका है, जहन्नम के सिवा कुछ नहीं है। Now, I'm not saying for one second that there are only negative voices against 370 in the valley or indeed Jammu and Kashmir. People there may have welcomed the move. Tribals and minorities in the valley may have also been happy. But how will we ever know when we can't hear them? At the core of Article 370 and its scrapping is not development or tackling corruption. It is tackling insurgency in Kashmir. Kashmiri people and their lives are at the heart of this decision. You think they deserve some space.
You think journalists who are supposed to be the voice of the people would realize that? Tough luck. Most of them are too busy being hired bullies of the government. I hope that when I speak on facts, I'm allowed to I will not take more than 2 minutes and I'm uninterrupted. You may please counter me, Anand, after making points. Anand is right that fundamental rights must apply in Kashmir. This is the mindset. पहले शर्त फिर बात. पहले शर्त लीजिए हमारी और फिर हम करेंगे आपसे बात. आपकी शर्तें सारी निकल गई. अब ये दौर वो दौर नहीं है जब आप शर्तें लगाया करते थे. अब देश का नौजवान, कश्मीर का नौजवान अपनी शर्त पे आपको वहां घुसने देगा. As we record this show, Narendra Modi, the Prime Minister of the country, has told his partywalas to not chest thump and that there's a long road ahead. Modi ji, please tell your karyakartas and TV channels also to follow suit. Thank you so much for watching that episode. If you liked it, don't forget to like our YouTube channel and subscribe to newslaundry.com. We also have a great new NL Sena project where you, the people, power our journalism. The project is about who owns your media, where we want to tell you who owns your media, whether it's a politician or is it a corporate house or is it an NGO. We want you to know who owns your media because that decides a lot of the media's messaging. So log on to newslaundry.com/Sena, the link below, and power our NL Sena project.